महानगर के पाक स्थित गोबरा कब्रिस्तान में आज एक नए ब्लॉक का इनॉग्रेशन मेयर फिराद हाकिम के हाथों किया गया। गोबरा कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने के लिए जगह की परेशानी को देखते हुए केएमसी की ओर से नए ब्लॉक को शुरू किया गया। इसके अलावा वुजू खाना, मैयत देने वालों के लिए पार्किंग लॉट और अन्य सुविधाओं की भी आज से शुरुआत की गई। इस मौके पर मेयर फिराद हाकिम के अलावा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सांसद नदीमुल हक, विधायक स्वर्ण कमल साहा, MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, MMIC संदीपन साहा, स्थानीय काउंसलर जॉली बोस, बारूक चेयरपर्सन स्मिता भट्टाचार्य के अलावा मोहम्मदन बेरियल बोर्ड के मेंबर इश्तियाक अहमद, राजू और अन्य मेंबर्स मौजूद थे। आज हमारा ये लगातार कोशिश है, जो हमारे वजीरे आला ममता बनर्जी कहती है, बंगाल में हम कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात के हो, कोई भी प्रांत के हो, हम अपने इज्जत के साथ सर उठा के जीते हैं और सबके लिए सहूलियत होना चाहिए। जैसा क्रिमिनेशन, इसमें शमशान का डेवलपमेंट होगा, आप देखें नीमतला, केवड़ा तला, सिरिटी सब जगह डेवलप हो रहा, वैसा हर क्रिश्चियन बेरियल ग्राउंड, हिंदू बेरियल ग्राउंड, मुस्लिम बेरियल ग्राउंड, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है और सारे कलकत्ता का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये सब जगह में क्रिमिनेशन घाट और बेरियल ग्राउंड में आदमी दुख लेके आता है, खुशी से तो कोई नहीं आता है। किसी का इंतकाल हो गया, किसी का मौत हो गया तब आता है। उनको अगर सब चीज़ का फैसिलिटी नहीं मिले तब उनको और भी परेशानी बढ़ती है। इसलिए हमारे ये लगातार कोशिश है ये सब फैसिलिटी जो है ये उनको दिया जाए। ये ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन भी, और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बेरियल बोर्ड मेंबर का कि उन्होंने लगातार हर जगह, हर बेरियल बोर्ड घूम के क्या कब्रिस्तान में क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सजेशन हमें देते रहती है। बागवानी बेरियल ग्राउंड में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बात कंप्लेंट सुना जा रहा है, उसको हम हटा दिया। जैसे ही मेरा कान में आया, दूसरा दिन सब रजिस्टर को हटा दिया गया और बेरियल बोर्ड के मेंबर लाइन को बोला गया है जो आपने स्ट्रिक्ट उसके ऊपर निगरानी रखी। पंचायत ভোটের আগে রাজ্যের স্কুলে মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, কি বলবেন? প্রায় 372 কোটি টাকা এবং মাথাপিছু 20 টাকা। কি করে কেন না করলে কি করা যাবে বলেন? তার কারণ যেভাবে গ্যাসের দাম বাড়ছে, যেভাবে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে সারা ভারতবর্ষে, সেই জন্য বরাদ্দ বাড়ানো, যেটা পঞ্চায়েত ভোট না, বাচ্চাদের যাতে মিড ডে মিলটা ঠিক মতন খাওয়ানো যায়, তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তারা বাচ্চাগুলো যাতে ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া পায়, সেই জন্য চেষ্টা। আবাস দুর্নীতিতে সেন্ট্রাল দিয়ে দিতে পারছে না, তাহলে এই টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে না? বাচ্চাদের খাওয়াবো না, ওনাকে খালি দিতে থাকবো দিয়ে। বিরোধীরা কি কর্মচারীদের লিজ নিয়ে নিয়েছে নাকি? একটা সরকারি কর্মচারী সে অন্তত খাবার টাকা পায়। একটা গরিবের বাচ্চা যখন স্কুলে যায় সে না খেয়ে যায়, তার খাওয়াটা আরো বেশি এসেনশিয়াল। কালকে জেনারেশন তৈরি হয়, এরা বুঝতে পারবে না। তেলের মাথায় তেল নয়, যে নেই যার তার পেছনে দাঁড়াও, এটা প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। ভারতের হামলা বাংলায় হয়নি, বিহারে হয়েছে। ফুটেজ আজকে সামনে এসেছে। আমি আগেও আপনাদের বলেছিলাম যে এটা বিহারের ইউপির ন্যাচারাল প্র্যাকটিস, এতে ইট মারা বাংলাকে বদনাম করছিল। আজকে ধন্যবাদ জানাই রেলকে যে তারা ইয়ে করে পেয়েছেন যে এটা বিহারে হয়েছে। কিন্তু যেখানেই হোক ন্যাশনাল প্রপার্টি ওপরে আঘাত আনা, দেশের ওপর আঘাত আনা। তার কারণ রেল বা জাতীয় সম্পত্তি কোনো গভর্নমেন্টের নয়, জাতীয় সম্পত্তি আমাদের জাতির, আমাদের ভারতবর্ষের। সেটাকে ক্ষতি করছে, সে অন্যায় করছে, সে পাপ করছে। আচ্ছা, আবাস দুর্নীতিতে আজকে সেন্ট্রাল মানে গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি দল মালদা এবং পূর্ব মেদিনীপুর আসছেন। গ্রাম উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে কত টিম পাঠাবে কেন্দ্র, রাজনীতি করছে। আসলে কি জানেন, ব্যাপারটা হচ্ছে এইখান থেকে কিছু বিজেপি নেতা নাচাচ্ছে আর দুর্ভাগ্যভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নাচছে। লাভ কি? আবাসের কোনো দুর্নীতি হয়নি,
নাম যে কেউ যে কোনো দিতে পারে। ডিসবার্সমেন্টের আগে ইনকোয়ারি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। আমি যখন টাকা দেবো, আমাকে আপনি একটা ব্যাংকের লোন দেবেন বলুন, হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন এসে পড়বে। তারপরে সেই ব্যাংক ভেরিফিকেশন করে যে কোন কাকে লোন দেবো কাকে দেবো না। আবার সে যখন 2-3 বছর ধরে পয়সা দেয়নি, যখন দেবার সময় আসছে আমি আগে থেকে ভেরিফিকেশান করবো, তারপর যদি না দিতে পারি তখন তো আমাকে মারবে লোকে। এখন যখন দেবার সময় এসছে আমরা তো ইনকোয়ারি করে দেবো, সেই ইনকোয়ারি তো রাজ্য সরকার করছে। রাজ্য সরকারের নথিটাকে নিয়ে বিরোধী বাবুরা নাচছে। बोर्ड मेंबर हमारे जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह है, ख़ास तौर से हमारे जो मेयर है उनके मदद से, ममता बनर्जी की मदद से आज समझ लीजिए हमें नहीं लगता है कि कभी कुछ लोगों से भी बात हो रही थी तो उन लोगों का भी ये कहना है कि 40 साल में हमने कभी इस तरह से डेवलपमेंट हम नहीं देखा। और सबसे बड़ी हम लोगों की जो कामयाबी में जो और ये जो काम जो देख रहे हैं ये हमारे CMHO चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो है इनके मदद से ही हुआ है। इनके आने के बाद में बेरियल बोर्ड में बहुत सारा काम जो है आगे बढ़ा है और आने वाले दिन में इनके सपोर्ट से ही होगा, इनके सपोर्ट से ही होगा। और क्योंकि इनके पास जो भी फाइल जाता है तो ये फाइल को रखते नहीं है। कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप भी यहाँ पेश ज़्यादा रहते हैं, वक्त ज़्यादा देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये जगह ऐसा है, ये अभी ये आखिरत का जगह है। आप जिस तरह से अभी आप कह रहे थे या किसी बॉबीदा से आप पूछ रहे थे कि यहाँ पर कुछ नशा वगैरह होता है, तो ये जो जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी सिर्फ कलकत्ता कॉरपोरेशन, CMHO, मेयर और बोर्ड मेंबर जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी तमाम लोग जो यहाँ आते हैं, जो ज़ायरीन जो आते हैं, जो ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो मिट्टी देने के लिए आते हैं, जो अपने अहबाब, अपने दोस्त, अपने अजीज़ के लिए जो आते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है और उनको कलेक्टिवली हम लोग सब मिलकर इससे लड़ने की ज़रूरत है और इसे कम से कम करने की ज़रूरत है और इसे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम लोग तो करते हैं। मगर राजू भाई, बोर्ड मेंबर आप लोग हैं तो फिर पब्लिक, अगर बोर्ड मेंबर अगर नहीं होते फिर पब्लिक आवाज़। देखिए ये कोई बिल्डिंग नहीं है जो बिल्डिंग को हमने, एक बिल्डिंग 10 तला बिल्डिंग है, 5 तला बिल्डिंग है, जहाँ पर हमने कैमरा लगा दिया, सिक्योरिटी लगा दी है, वहाँ पर से मॉनिटरिंग। ये समझ लीजिए ये 54 बीघा के ऊपर में है, 53 बीघा के ऊपर में है, 154 बीघा के ऊपर में है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इसके वजह से कलकत्ता कॉरपोरेशन, मेयर और CMHO ने कैमरा लगाए हैं। यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा है। लगता है कि प्रशासन फेल है और पुलिस फेल है? प्रशासन और पुलिस जो है जिस तरह से काम कर रही है, हमें नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद आज तक कोई प्रशासन और कोई पुलिस इस तरह से काम किया है जिस तरह से ये सरकार, ममता बनर्जी के सरकार और बॉबी हकीम के नेतृत्व में ये बोर्ड का काम हो रहा है। हमें नहीं लगता कि इसके पहले इतिहास में कभी इस तरह का काम हुआ होगा। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बाउंड्री का काम इस तरह से हुआ है। आपने कभी इस तरह का सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे जो नशाखोर है वो ना आए? नहीं, यहाँ कौन आपको बोला कि नशाखोर है? देखिए आप अगर यहाँ पर ज़ायरीन जो आते हैं ज़ियारत करने के लिए और जो मिट्टी देने के लिए आते हैं, तो कौन जान रहा है किसके पॉकेट में क्या है? अगर कोई गाछ के नीचे या कोई, हम आपको क्या कहें, कोई की ये बिल्डिंग नहीं है, ये वास बहुत बड़ा जगह है। अब कोई गाछ के नीचे है, कोई यहाँ, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गेट हम लोगों ने बंद कर दिया है, CMHO के ऑर्डर से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा गेट वगैरह भी बंद हुआ है। वो कंट्रोल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंट्रोल हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसपास से यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं, जो समझ लीजिए कोई यहाँ पर ये भी आते हैं कि शांति और सुकून के लिए भी आते हैं कि कम से कम कब्रिस्तान में जाएं, क्योंकि आप शरिया के मुताबिक कब्रिस्तान में भी आने और आपको जाने की इजाज़त है और ज़रूरत भी है कि भाई आप कब्रिस्तान जाएं, ज़ियारत करें। बेरियल ग्राउंड में कितना CCTV कैमरा लगाया गया? अभी देखिए यहाँ तो हम लोगों का 16 कैमरा यहाँ लगा है और हर ये जो है टोटल ये जो है कब्रिस्तान, 1 नंबर कब्रिस्तान, 2 नंबर कब्रिस्तान, 3 नंबर कब्रिस्तान में भी टोटल कैमरा लगा है। बागमारी में लगा है, 16 आना कब्रिस्तान में लगा है। जो जो कब्रिस्तान कलकत्ता कॉरपोरेशन के अंडर में है सब में लगा है। इतना कैमरा लगने के बावजूद भी लाश मिलने की खबरें आप अक्सर देख रहे हैं। कोई लाश मिलने की खबर नहीं मिल रही है। अभी से 2 महीना पहले भी 2 लाश मिली है। देखिए ऐसा है, कोई अगर आकर ट्रेन चलता है तो ट्रेन में आकर कोई अगर झांप दे देता है या कोई कूद कर अपनी जान दे देता है तो ट्रेन बंद कर दें। इसी तरह ये कब्रिस्तान का गेट खुला है, यहाँ एक गेट नहीं है, यहाँ पर 4 गेट है।
ठीक है, 1 2 3 गेट जो मेन गेट है वहाँ से, अगर ये जो बात आप कह रहे हैं अगर कैमरा नहीं लगता तो ये भी नहीं पता चलता कि ये सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है। आप लोगों ने पहले कहा कि ये मर्डर हुआ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा के जरिए ही पता चला कि वो किस तरह से आए और कहाँ जाकर जम मारे, वो सीसीटीवी कैमरा के आज तक मेरे पास 2 नंबर कब्रिस्तान में एक 9 साल का बच्चे को मारा, बहुत नहीं मारा नहीं गया। वो देखिए, वो 1 नंबर कब्रिस्तान में एक हादसा हुआ था, वो वहाँ पर जो हादसा हुआ था उसके बाद से वो गेट वगैरह बंद हुआ है। राजू भाई, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कब्रिस्तान टोटल बीघा कितना है? नहीं 54। मेयर साहब से सवाल किया था, मेयर साहब ने उसके ऊपर जवाब दे दिया है। इसके ऊपर हम और कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर में कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर में मेयर साहब ने कार्रवाई की है, उसके ऊपर में हमारे CMHO साहब ने कार्रवाई की है। तो ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। आप CMHO साहब यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं।